Good morning, class 8th. Today we will start a new chapter, chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Now, of all the chapters, this is a chapter that is most closely related to you because it talks about your age, the age that you are in, adolescence, which we simple terms, we also call it as teenage. Okay, so in this chapter, what we are going to read about is that what is adolescence, what is puberty, what are the changes that adolescence brings, okay, what are the physical changes that your body goes through when you reach the age of adolescence, how they impact you, and many other things. Okay, so to start the chapter, the first thing is adolescence. What is adolescence? अब आप लोगों ने सबने अपनी लाइफ अगर नोटिस की होगी तो आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब आप छोटे थे, से यू वर इन क्लास 4th 5th, ओके, सो यू वर 9-10 years of age, and then you grew up, okay, you turned 12, you turned 13, most of you must be now 13, 14, so this age 13, 14 till about the age of 18 is what we call as adolescence. Now, what is adolescence? Adolescence is that period of life where body undergoes many changes, okay, which lead to reproductive maturity. Now, what do we understand by reproductive maturity? Reproductive maturity means your body undergoing those physical changes. आपकी body के अंदर वो physical changes होते हैं जिनसे कल आप, if you are a male, you are capable of producing a child, and if you are a female, you are capable of producing a child. Okay, so ye reproduction means birth. Okay, birth of the same species. When species multiply, that is called reproduction. Okay, तो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इज रिप्रोडक्शन, ऑल राइट. तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर फीचर होता है जिसके कारण एक आदमी बच्चा पैदा करने के लायक होता है या एक औरत बच्चा पैदा करने के लायक होती है, वो चेंजेस हमारी बॉडी में दे आर नॉट देयर इन आवर चाइल्डहुड. ओके, जब हम बच्चे होते हैं 8-9 साल के, तो हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते, वो हार्मोन्स डेवलप नहीं हुए होते. दे डेवलप एट अ पर्टिकुलर एज. Okay, and that age is called adolescence. So basically, in simple terms, adolescence is that period which is between childhood and adulthood. Okay, so your childhood is what, around 0 to 11 years of age, and your adulthood, you become adult when you are 18 plus. तो ये 11 साल से 18 साल का बीच का जो पीरियड होता है, इसको हम adolescence कहते हैं. Okay, adolescence is also called as teenage. Now, this is a very delicate period, not just in terms of your physical growth. ना केवल आपके शरीर में शारीरिक बदलाव ऐसे होते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं महसूस किए होते, बल्कि आपकी मानसिक यानी कि मेंटल और इमोशनल ग्रोथ भी इस टाइम हो रही होती है. So, since all of you who are students of class 8 right now, you are all part of adolescence. You are all adolescents at the moment. You are all teenagers. So, this is a chapter that is very closely related to your life. Okay. So, in simple terms, adolescence is that period of life जब our body undergoes changes which lead to reproductive maturity, जो कि हमें उस लेवल पे ले जाते हैं बाद में जिसको हम reproductive maturity कह सकते हैं. यानी कि something that starts at 11 continues till 18 years of age, the physical changes, they make us reproductively mature when we hit 18 plus, or then when you grow up to be the age of marriage, and when you actually grow up to be able to bear children. तो वो जो आपका बाद में जो स्टेज आती है, okay, to become parents, उस स्टेज की जो बिगनिंग होती है वो स्टार्ट होती है adolescence में. अब वो बिगनिंग कैसे स्टार्ट होती है? adolescence में there is a stage called puberty. Okay, puberty वो टाइम होता है when your body becomes sexually mature. When I say sexually mature means every human being, male and female, both have sexual organs. Okay, in case of males, those sexual organs are testes and penis.
Okay, in case of girls, those sexual organs are their vagina, their ovaries, their uterus. ओके तो ये हमारे ये दोनों जेंडर्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं. व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप एक बच्चे होते हैं तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, उस लेवल तक डेवलप नहीं होते हैं कि आप दोबारा यू कैन बी कॉल्ड सेक्सुअली मेच्योर. ओके, व्हेन अ बॉय इज बॉर्न, yes, there is a presence of penis. When a girl is born, there is a presence of vagina. But the testes and the uterus becoming mature or ovaries becoming mature, ये सब होता है when you hit puberty, जब आपकी puberty आती है. तो in case of girls, puberty is around the age of 10 to 12 years. 10 से 12 साल के बीच में लड़कियां puberty hit करती हैं और लड़के जो होते हैं वो 12 से 13 साल की उम्र में puberty hit करते हैं. तो puberty का मतलब क्या हुआ, क्या होता है जब puberty होती है? जब puberty आती है हमारी फिजिक बॉडी में, when we hit the age of puberty, बॉयज अंडरगो सर्टेन चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, उनकी आवाज जो होती है वो थोड़ी भारी होने लग जाती है. उसके अलावा अगर लड़के देखेंगे, अगर आप लोग अपने गले पे हाथ लगाएंगे तो आपके गले के एक निकला हुआ सा पोर्शन होता है आपके गले में. ओके, आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो ऑफ दैट. सी दिस. Okay, this is called Adam's apple. So this Adam's apple starts to develop. It is not there in girls. It starts to develop in boys. So ये होने लग जाता है. लड़कियों के केस में their hips start becoming wider. They start to develop breasts and they start to get their periods. ओके, तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं जो जब प्यूबर्टी हिट होती है तो हमारी बॉडी में आते हैं. सो अडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी both are very closely related. Adolescence is the stage, your age between childhood and adulthood. Adolescence is the time when your body is undergoing sexual changes which lead to reproductive maturity. Adolescence वो समय होता है जब आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस हो रहे होते हैं. सेक्सुअल चेंजेस से मेरा मतलब है जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं, ओवरीज, टेस्टीज, पीनस, यूट्रस. For boys it is penis and testes, and for girls it is uterus and ovaries. I'll show you the picture of the reproductive organs in case of both male and female. So these are female reproductive organs. Okay, so these are ovaries. Okay, this is uterus, and this below is where the female vagina is found. Okay, so to understand the physical the working of ovaries is कि हर महीने for a girl this ovary releases one egg. There are ovaries on both the sides. Okay, this tube is called fallopian tube. As you can see, this tube is called fallopian tube. So every month the ovaries release. एक महीने एक ओवरी रिलीज करती है, एक महीने एक ओवरी रिलीज करती है, सिंगल एग रिलीज करती है, और फिर वो आपकी फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में पहुंचते हैं. दिस इज द यूट्रस. दिस इज वेयर व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, दिस इज द एरिया वेयर अ चाइल्ड डेवलप्स. ओके, जब एक गर्भ के अंदर एक बच्चा होता है तो वो माँ के यूट्रस, जिसको हम हिंदी में बच्चादानी कहते हैं, वहां पर डेवलप होता है. ओके, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दीज 3 थिंग्स, ओवरीज, uterus and fallopian tubes along with vagina is part of the whole female reproductive system. Then there is male reproductive system. Okay, so in male there is a penis. Okay, and there are this is the penis and these are the testes. Okay, testes have the sperm, and penis is again part of the reproductive organs of humans, of males. All right. Now, a male produce sperms in their testes. Okay, they produce sperm in their testes. A sperm looks like this. It cannot be visible by naked eye. This is what you are seeing because the picture is made here. Or female produces egg. This is egg. It is also called as ovum.
ऑलराइट। तो ये दोनों सिस्टम है मेल और फीमेल के। तो जब मैं आपको कहती हूं सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एडोलेसेंस, व्हाट आई एक्चुअली मीन इज दैट द टेस्टीज हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द स्पर्म and ovaries have started producing the egg. When a male produces sperms, only then he is capable of reproducing more children. When a female produces egg, only then she is capable of getting pregnant at some point in time. तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रिस्पेक्टिव जेंडर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने से मेरा मतलब है टेस्टी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल्स ओवम प्रोड्यूस करती हैं और फीमेल हार्मोन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये सब चेंजेस आते हैं जब आप अडोलेसेंस में पहुंचते हैं। ये सब चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज अडोलेसेंस में वी हिट प्यूबर्टी. Puberty is that age, puberty is that chemical change in your body where your body becomes sexually mature. यानी कि irrespective of what your age is, you are capable of now producing a child. Okay, that is what we mean by that is what we understand by being sexually mature. कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं अब वो रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो रहे हैं. We may be 14 years, but our organs are getting mature to reproduce. Okay. तो गर्ल्स के केस में, as I told you, the puberty comes around 10 to 12 years of age. Boys के केस में puberty comes around 12 to 13 years of age. And then when the puberty comes, we undergo some changes. Now, what are the changes that the body undergoes when the body hits the puberty? Okay, let's read about those changes. I'll open that chapter again. Okay. तो मैंने आपको भी ये बताया है, अब मैं आपको बता रही हूँ चेंजेस एट प्यूबर्टी की प्यूबर्टी जब आती है तो क्या क्या चेंज आते हैं. सो व्हाट आर दी चेंजेस? देर आर सर्टेन चेंजेस विच आर डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल. देर आर सर्टेन चेंजेस विच आर कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दी फर्स्ट चेंज इन बॉडी. ओके, प्यूबर्टी जब होती है तो चेंज इन बॉडी कैसे होता है? इन केस ऑफ बॉयज, शोल्डर्स बिकम ब्रॉड और चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है. इन केस ऑफ फीमेल, ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप एंड हिप्स बिकम वाइड. ओके, फीमेल्स के केस में, लड़कियों के केस में ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती हैं और हिप्स थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं. ये हैं फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी. देन कम्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. टेस्टिस एंड पीनस बिकम लार्जर. ओके, दे बिकम लार्जर. ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस एनलार्ज. मैंने अभी आपको उनकी दोनों की फोटोग्राफ दिखाई. दोनों टेस्टिस, पीनस आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस आर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ऑलराइट, तो ये दोनों का साइज जो है वो बड़ा होने लग जाता है. बड़ा क्यों होने लग जाता है? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं जो डेवलप होंगे, जिसके कारण मेल्स के अंदर स्पर्म्स डेवलप होंगे और फीमेल्स के अंदर ओवम डेवलप होंगे. गैमेट रिलीज्ड. गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल, वो सेल जिसके कारण दोबारा से एक नई जिंदगी का रिप्रोडक्शन हो सकता है. दैट इज कॉल्ड गैमेट. गैमेट को इन सिंपल टर्म्स वी विल कॉल सेक्स सेल. ओके, सो इन केस ऑफ मेल दैट सेक्स सेल इज स्पर्म. In case of female, that sex cell is ovum, यानी कि egg. तो boys sperm कैरी करते हैं, girls egg कैरी करते हैं. Sperms can be millions in numbers, but egg is only one released every month. A female body carries only limited number of eggs, which are released every single month. फिर आते हैं आवाज में बदलाव. आवाज में क्या बदलाव होता है? लड़कों के केस में आवाज भारी हो जाती है और उनका एडम्स एप्पल, मैंने अभी आपको एडम्स एप्पल दिखाया था, उनका एडम्स एप्पल निकलने लग जाता है. इन केस ऑफ गर्ल्स, आवाज जो है तीखी हो जाती है, श्रिल हो जाती है और उनका कोई एडम्स एप्पल डेवलप नहीं होता.
फिर आते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम सिंपल टर्म्स में पीरियड्स कहते हैं। बॉयज के पीरियड्स नहीं होते, ओके, क्योंकि बॉयज के अंदर ओवरीज और यूट्रस नहीं होता, बॉयज के पीरियड्स नहीं होते। गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स एवरी मंथ। Periods are a like of bleeding, they are like bleeding from uterus। वो क्यों होती है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो females get monthly bleeding from uterus which is called periods और menstruation। लड़कियों को हर महीने यूट्रस से एक तरीके की ब्लीडिंग होती है जिसको हम periods या menstruation कहते हैं। बॉयज को ये नहीं होता। फिर आते हैं कुछ कॉमन चेंजेस, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, लड़कों की भी हाइट बढ़ती है, लड़कियों की भी हाइट बढ़ती है। डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, आप देखेंगे कि जब आप बच्चे होते हैं आप उतना पसीना आपको नहीं आता, लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको पसीना ज्यादा आने लग जाता है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपके स्वेट ग्लैंड्स डेवलप नहीं होते। ग्लैंड का मतलब होता है किसी भी तरीके की ओपनिंग, छेद, ओके। तो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, दिखाई नहीं देते पर होते हैं, जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, जहां से कि पसीना निकलता है। तो ये दोनों ही में ही होता है, लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। उसके बाद तीसरा कॉमन चेंज होता है मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। अब मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस मीन्स क्योंकि आपकी बॉडी अंडरगोज सो मच चेंज, आप बड़े हो रहे होते हैं, आप ना तो एडल्ट होते हैं ना ही आप बच्चे रहते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस मेंटली होते हैं। आपको बाकी लोग जो देख रहे होते हैं, जैसे आप घर पे भी देखेंगे तो हमेशा आपको मम्मी पापा कहेंगे अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। सो समटाइम्स देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, समटाइम्स यू फील वेरी डिफरेंट कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप थोड़े मेच्योर भी हो जाते हैं, आपको समझ में आता है, जैसे आप जिस तरह से बच्चे होते हैं और जिद करते हैं, उस तरीके से जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो नहीं जिद करते, घर वाले कुछ समझाते हैं तो आप समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी वो मेंटल ग्रोथ हो गई होती है। सो देयर आर मेनी थिंग्स मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो विच आर चेंजिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी। Okay, so today I will stop till here only. Once again I will revise what we have done so far. So before I go to revising, let me once again tell you the female and male reproductive organs. आदमी और औरत के अंदर, आदमी और औरत वो बाद में बनते हैं। जब हम लड़का और लड़की की बात करते हैं तो हमारे अंदर मेल्स के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, फीमेल्स के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम ये होता है, ओके। तो ये हमारा यूट्रस होता है, ये ओवरी होती है, ये ओवी डक्ट या इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इट इज दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अ प्रेगनेंसी when we grow mature, when we attain adulthood, okay। तो ये पार्ट है शरीर का which is responsible for bearing a child and giving birth to a child. Same way in case of boys also there is a male reproductive organ system which includes their testes and their penis. In case of boys, this is the organ which is responsible for them to become fathers in future when they attain adulthood, okay। अब in case of females, every month from the ovary, this is the ovary, okay, every month from ovary, एक बार एक ओवरी एक बार एक ओवरी। तो अगर जनवरी में इस ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो फरवरी में इससे रिलीज होगा, मार्च में फिर इससे रिलीज होगा, वहां से एक एग निकलता है, सिंगल एग विच इज कॉल्ड ओवा, ओवम, एग, यू कैन से वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो ये एक एग होता है, यहां पे पिक्चर बहुत बड़ी है, यू कैन नॉट सी इट, इट इज वेरी स्मॉल। और इन केस ऑफ मेल, टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स, ओके। सो ओवा इज द फीमेल सेक्स सेल and sperm is the male sex cell, okay। So this is the male, okay, and this is the so let me just explain to you what happens is, now you can see this picture,
This is the egg. These are the sperms. Okay. When sperm, there may be millions of sperm. There is only one sperm that fertilizes the egg. Fertilizes का मतलब that meets the egg. तो जब एक मेल स्पर्म फीमेल एग को मीट करता है, ओके, सो अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड. दिस इज द न्यू सेल. आप देख रहे हो इसके अंदर ये स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस मिलके एक नया सेल बनाते हैं. उस सेल को हम जाइगोट कहते हैं. यही जाइगोट होता है जो कल धीरे धीरे बड़ा होकर गर्भ के अंदर एक बच्चे का रूप लेता है. तो ये चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज आई एम सरप्राइज दिस इज लेटर इन योर सिलेबस. एक्चुअली इट शुड बी अर्लियर इन योर सिलेबस, बट दिस इज अ फाइनल टर्म चैप्टर. तो ये चैप्टर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इन अडोलेसेंस राइट नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड इतना, ओके, कि ये ऑर्गन सिस्टम है मेल और फीमेल. मेल स्पर्म रिलीज करते हैं, फीमेल एग रिलीज करती है. जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो एक न्यू सेल को बर्थ देते हैं. वही सेल होता है जो बाद में गर्भ के अंदर एक बच्चे की तरह डेवलप होता है. दिस इज द एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट इन दिस फॉर्म when we are children. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी ओवरीज, टेस्टीज वगैरह इस तरह से डेवलप नहीं होती कि स्पर्म और एग रिलीज होते हैं. ओके, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप होती हैं जबकि स्पर्म और एग्स हमारी बॉडी में बनना शुरू होते हैं. उस पर्टिकुलर टाइम को, जिस समय हमारे शरीर में ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उसको हम कहते हैं अडोलेसेंस. तो अडोलेसेंस बेसिकली हमारे चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का हिस्सा होता है. इसको हम टीनेजर भी बोलते हैं. अडोलेसेंस हमें इसलिए आती है क्योंकि हम प्यूबर्टी रीच करते हैं. प्यूबर्टी इज दैट स्टेज व्हेन एन अडोलेसेंट बिकम सेक्सुअली मैच्योर. यानी कि जब उसकी बॉडी, अगर अडोलेसेंट फीमेल है तो उसकी बॉडी में एग बनने शुरू हो गए हैं, और अडोलेसेंट अगर मेल है तो उसकी बॉडी में स्पर्म बनने शुरू हो गए हैं. उसका मतलब है दैट वी हैव हिट द प्यूबर्टी. अलोंग विद दीज सेक्सुअल चेंजेस देयर आर अदर चेंजेस ऑल्सो दैट टेक प्लेस, जो कि मैंने आपको बताए. जैसे लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है. उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने बता ही दिए हैं. गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल. तो बॉयज स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म्स, गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग एग्स. आवाज लड़कों की भारी हो जाती है, लड़कियों की तीखी हो जाती है. फिर पीरियड्स होते हैं. लड़कों को पीरियड्स नहीं होते, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, विच इज लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस विच हैपन्स एवरी मंथ. वो क्यों होती है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. और फिर कुछ चेंजेस, कॉमन चेंजेस होते हैं. ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली रीड द चैप्टर टिल पेज नंबर, प्लीज यहां तक 10.3 के ऊपर तक, यहां तक प्लीज आप रीडिंग करिए. यहां तक का चैप्टर हमने आज खत्म कर लिया है. ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी मूव फर्दर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच.